Welcome to all in Parul University webinar series, and very good afternoon to all of you. Today's our guest speaker is Mr. Manthan Pithadia sir, and let's give brief introduction about his profile. Myself Devangini Dave. Manthan sir has completed his bachelor degree from GTU in the field of information and technology with 9.29 CGPA. Also, he received the Sri Devang Mehta IT Award for 2 consecutive years, 2018 and 2019. Moreover, he has nominated and won the Academic Performance Award, which was given by the Vadodara Institute of Engineering in the year 2018. He has been working as an Android developer and graphic designer from last 3 years. He has done his internship at the Reserve Softwares. Also, he was the winner of Hack Day, a national level competition organized by ISTE. Over there, he showcased an OCR-based application for blind people. His other significant development is Weir Campus, which he made for his institute. Last year, he conducted a full-day workshop on Android with AI at Vadodara Institute of Engineering. So, without wasting time, I'm handovering my mic to Mr. Manthan Pithadia sir. Today's our topic that is basics of Android development. Okay, thank you, ma'am. So today we'll start with the basics of Android development, and we are gonna discuss about these topics today. That is history of Android and what is Android basically. After we'll go further for the architecture, activity lifecycle, UI, and why UI is important in the field of Android. I mean, जो भी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं एंड्रॉइड के अंदर उसमें यूआई का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों उसके बगैर एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पे अपलोड नहीं करनी चाहिए, मतलब यूआई आपका क्यों अच्छा होना चाहिए, दैट इज दैट. Then we'll go for the introduction to Android Studio, so basic, files and all that, and then after layouts and number generator app. So पूरे सेशन के दौरान हम सबसे आखिर में हम एक नंबर जनरेटर ऐप बनाएंगे जो कि आपके लिए एक काइंड ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा. So without wasting time, let's begin with the history of Android. We have seen a drastic change from Symbian to Android, and we know that Symbian was actually came in 1997, and we all are aware of Nokia 1100, right? We all have used it. और उसके बाद एंड्रॉइड आया 2003 के अंदर. एंड्रॉइड इंक का फाउंडेशन हुआ था जो कि हमारे एंडी रूबिन ने किया था. ही वाज द फाउंडर ऑफ एंड्रॉइड, एंड इन 2005 गूगल एक्वायर्ड द एंड्रॉइड. 2007 में OHA एस्टेब्लिश हुआ था. व्हाट इज OHA? विल डिस्कस फर्दर अबाउट OHA इन द नेक्स्ट स्लाइड. इन 2008 HTC ड्रीम, फर्स्ट एंड्रॉइड फोन आया था इन 2008. सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे OHA की इन द नेक्स्ट स्लाइड, और दैट इज ओके. सो जैसे कि आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर कि OHA क्या है. सो बेसिकली OHA इज एक ऑर्गेनाइजेशन हम बोल सकते हैं या फिर अलायंस है एक, जिसके अंदर सारे हैंडसेट मैन्युफैक्चरर, सॉफ्टवेयर कंपनीज या फिर जो भी हम लोग बोलते हैं कि मोबाइल ऑपरेटर्स, वो सारे एक ही OHA के ग्रुप के अंदर कनेक्टेड है, वो सारे लोग. सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि द आइडिया इज दैट ऑल द मैन्युफैक्चरर एंड द सॉफ्टवेयर कंपनीज केम टुगेदर अक्रॉस द ग्लोब फॉर मोबाइल डिवाइस, एक स्टैंडर्ड मोबाइल डिवाइस को स्टैंडर्ड बिल्ड करने के लिए. Currently, there are around 84 companies are registered in the alliance, and these are some tech giants we can see over here. जैसे कि हम देख सकते हैं कि सैमसंग, वोडाफोन और HTC ड्रीम, HTC is also there, LG is also there.
सो जो भी हम एंड्रॉइड फोन अभी यूज कर रहे हैं, आप लोगों ने एक चीज कॉमन नोटिस की होगी उसके अंदर कि आपको एक स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आप लोग यूज करते हैं उसके अंदर, एंड्रॉइड फोन के अंदर। लाइक मोस्टली एंड्रॉइड फोन के अंदर वो प्रोसेसर आता है, राइट। सो वो सारे स्टैंडर्ड्स ये सारी कंपनीज मिलके डिसाइड करती है। सो द बेसिक मोटो वाज कि जो भी एंड्रॉइड फोन्स डेवलप हो अक्रॉस द ग्लोब, वो सारे एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो करने चाहिए। सो दैट वाज द मोटो टू बिल्ड दिस OHA एक्चुअली। सो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेसिक कौन कौन से एंड्रॉइड के वर्जन आए अभी तक, और वो क्या है इसका उसका इम्पोर्टेंस, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अल्फा और बीटा वर्जन आया, जो कि हम बोल सकते हैं कि वो एक बेसिक या फिर टेस्टिंग के लिए था, वो वर्जन अल्फा एंड बीटा। उसके बाद कपकेक, डोनट, एक्लेयर, फ्रोयो और सारे वर्जन सोन आते गए। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे। ओके, So Google believes that Android devices make our lives so sweet and sweet like deserts. So majority of names are based on deserts and also in alphabetical order. So you can see over here कि जितने भी नाम है यहाँ पर वो सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, और प्लस वो सारे कोई ना कोई डेजर्ट के ऊपर नाम रखे गए हैं। एंड्रॉइड क्यू और 11 का अभी तक नाम नहीं आया है, लेकिन बाकी सबके नाम डेजर्ट के बेस पे आए हैं। सबसे मेन चीज है एंड्रॉइड के अंदर एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर। आई मीन बहुत सारे लोगों ने देखा होगा आर्किटेक्चर को, लेकिन इट इज पॉसिबल कि मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा आर्किटेक्चर क्यों यूज करते हैं। तो आज हम बेसिक समझेंगे कि आर्किटेक्चर का यूज क्या है और क्यों एंड्रॉइड के अंदर वो इम्पोर्टेंट है, उसको समझना क्यों जरूरी है बिफोर डेवलपमेंट। अगर आप एंड्रॉइड का डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं उसके पहले ही वो आर्किटेक्चर को समझना क्यों जरूरी है, हम देखेंगे आज। ओके, सो सिंपलिसिटी के लिए मैंने आर्किटेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मेजरली इसके 5 पार्ट है: सिस्टम एप्लीकेशन, जावा एपीआई फ्रेमवर्क, नेटिव लाइब्रेरी C++ वाली, एंड्रॉइड रन टाइम और लिनक्स कर्नल। जो नेटिव लाइब्रेरीज एंड्रॉइड रन टाइम और लिनक्स कर्नल है उसको हमने डिवाइड किया है सिस्टम के अंदर, और सिस्टम एप्लीकेशन और जावा एपीआई को हमने डेवलपर साइड में रखा है। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी में मैंने डिवाइड किया है आर्किटेक्चर को। तो हम सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे कि लिनक्स कर्नल क्या है, उसके बाद हम नीचे से ऊपर जाएंगे कि क्या उसका इंपॉर्टेंस है और क्यों हम उसको यूज करते हैं। सो बेसिकली एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि अगर आप कैमरा की एप्लीकेशन यूज करते हो, ठीक है, तो कैमरा की एप्लीकेशन को यूज करने के लिए जो भी डेवलपर होगा उसने कोई ना कोई फ्रेमवर्क का यूज किया होगा। सो बेसिकली कैमरा एप्लीकेशन उसके नीचे के लेयर यानी कि जावा एपीआई फ्रेमवर्क के अंदर कनेक्टेड होती है, और उसके बाद वो सारे फ्रेमवर्क नेटिव लाइब्रेरी और नेटिव लाइब्रेरी कनेक्टेड होती है कर्नल के साथ। सो ऐसे पूरा फ्लो जाता है। तो हम देखेंगे कि वो फ्लो कैसे वर्क करता है, और जो भी लेयर्स है वो 5 लेयर का इंपॉर्टेंस क्या है वो हम देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले आता है लिनक्स कर्नल। सो लिनक्स कर्नल क्या है कि लिनक्स कर्नल के अंदर हम मेजरली 3 पार्ट हम बोल सकते हैं कि उसका काम जो है, उसका मेन फंक्शन है वो 3 पार्ट में होता है। एक होता है हमारा डिवाइस ड्राइवर, दूसरा होता है मेमोरी मैनेजमेंट, एंड थर्ड वन इज द प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, सो डिवाइस ड्राइवर का हम बोल सकते हैं कि टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर, फॉर इंस्टेंस टू टर्न कैमरा ऑन एंड ऑफ, और वी कैन से टेक पिक्चर। सो अगर हमको कैमरा के साथ यूज करना है, अगर इंटीग्रेट करना है, या फिर हमें कोई एप्लीकेशन यूज करनी है जिसके अंदर कोई जैसे कि माइक ऑडियो की जरूरत है, या फिर कैमरा की जरूरत है, या फिर वाईफाई ब्लूटूथ, कुछ भी अगर हमको यूज करना है जो हार्डवेयर है हमारे एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर, तो उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए ड्राइवर चाहिए हमें। जैसे कि लैपटॉप के अंदर भी हम यूज करते हैं ड्राइवर्स, वैसे ही हमें एंड्रॉइड के अंदर भी ड्राइवर्स चाहिए। अभी ड्राइवर का मेन मोटो क्या है कि वी डोंट हैव टू राइट द कोड फॉर द ड्राइवर। ओके, वो बिल्ट इन होता है। सो by using these driver we can directly communicate with the devices, we can directly communicate with the hardware devices. Okay, the next is memory management. It is very important कि मतलब जब आप हार्डवेयर के साथ वर्क करते हो या फिर आप ओएस के अंदर वर्क करते हो, मेमोरी मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। यानी कि कब किसको कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, डी एलोकेट कब करनी है, मेमोरी फाइल्स को स्टोर कहाँ पर करनी है, और बाकी जितने भी मेमोरी के ऑपरेशंस है वो सारे मेमोरी मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि कैश मेमोरी एंड्रॉइड के अंदर होती है, जैसे कि
वो जैसे कि हम कैश को क्लियर करते हैं, वो सारी फॉर एग्जांपल हमने 4 एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, वो सारी कैश के अंदर इनिशियली रहती है, और जैसे हम कैश को क्लियर करते हैं वो सारी एप्लीकेशन को रिमूव हो जाती है। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट इज टू हैंडल मल्टी प्रोसेसिंग टास्क। हम बोल सकते हैं कि एक से ज्यादा अगर प्रोसेस यूज कर रही है एप्लीकेशन, तो उसको हैंडल करने के लिए भी लिनक्स कर्नल यूज होता है। सो बेसिकली लिनक्स कर्नल वो लाइट वेट है, सो इसलिए वो पूरा आपका एंड्रॉइड का सिस्टम को इजीली हैंडल करता है। ओके, सो लिनक्स कर्नल के बाद आता है नेटिव लाइब्रेरीज। नेटिव लाइब्रेरीज क्या है कि जैसे कि हमने सी प्लस में यूज किए stdio.h या फिर con.io.h हमने यूज किया लाइब्रेरीज। सो सेम वे में यहाँ पर भी बहुत सारी लाइब्रेरीज, नेटिव लाइब्रेरीज एंड्रॉइड के अंदर बिल्ड की गई है। जैसे कि ग्राफिक्स के लिए लाइब्रेरी है SQLite, यानी कि एंड्रॉइड के अंदर अगर आपको कोई फाइल या फिर अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए आप SQLite लाइब्रेरी यूज कर सकते हो। इंटरफेस के लिए लाइब्रेरी होती है, UI को हैंडल करने के लिए भी लाइब्रेरी होती है। तो ये सारी लाइब्रेरीज नेटिव लाइब्रेरीज हम बोलते हैं, जिसका यूज करते हैं कि कर्नल के साथ अगर हमको कम्युनिकेट करना है तो नेटिव लाइब्रेरीज का यूज हम करते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे अभी उसके पहले, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे कम्युनिकेट करना है विद द कर्नल, तो विदाउट यूजिंग नेटिव लाइब्रेरी अगर डेवलपर कम्युनिकेट करने जाएगा तो क्या होगा कि हमको पूरा कर्नल का आर्किटेक्चर या फिर समझना पड़ेगा। तो इसके लिए नेटिव लाइब्रेरीज बहुत जरूरी होती है कि जिसका यूज करके हम आई मीन फ्रेमवर्क के साथ जिसको कनेक्ट करके हम डायरेक्टली कर्नल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द API फ्रेमवर्क। API फ्रेमवर्क क्या है कि API फ्रेमवर्क हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे क्लासेस हम बोल सकते हैं, या सिंपल अगर हम फॉर एग्जांपल मैं समझाने जाऊँ तो मैनेजर क्या है कि अगर कोई भी कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉयज को अगर मुझे हैंडल करना है तो मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजर का काम होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज है वो सारे एम्प्लॉयज को मैनेज करना, उसका टास्क देखना, मतलब वो क्या कर रहा है क्या नहीं, वो सब देखना मैनेजर का काम होता है। तो सिंपली सेम वे में एंड्रॉइड के अंदर भी सेम होता है कि मैनेजर्स का जो रोल होता है वो रोल होता है कि हम जितने भी एंड्रॉइड के अंदर एक्टिविटी, लोकेशन, पैकेज, नोटिफिकेशन, जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं वो सारी चीजों को मैनेज करता है। तो हर एक चीज के लिए एक मैनेजर होता है। उसके बाद नेक्स्ट इज कंटेंट प्रोवाइडर, जो कि कॉल्स और SMS को के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई एप्लीकेशन बनानी है जैसे कि व्हाट्सएप के अंदर आप सारे आपके कॉन्टेक्ट्स को जैसे कि हम फर्स्ट टाइम जब व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको पूछता है कि क्या आप अपने जितने भी कॉल्स है, वो कॉन्टेक्ट लिस्ट है, उसको आप ऐड करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो वो सारी चीजें, मतलब वो आपकी जो कॉल बुक है उसके अंदर की जितने भी कॉन्टेक्ट्स है वो सारे आपके व्हाट्सएप के अंदर लोड होते हैं। तो वो बाय यूजिंग कंटेंट प्रोवाइडर हम करते हैं। या फिर आपको कोई SMS लोड करवाना है, जैसे कि ट्रू कॉलर के अंदर आपके सारे SMS आप देख सकते हो, या फिर आपके सारे कॉल के जो जितने भी लॉग होते हैं वो आप सब देख सकते हैं। तो वो सारा कंटेंट प्रोवाइडर हैंडल करता है। द नेक्स्ट इज व्यू सिस्टम। व्यू सिस्टम यूज होता है कि UI के लिए यूज होता है। बेसिकली वो सारी विजेट्स और वो सारी लाइब्रेरीज इसके अंदर होती है, वो जो हम डायरेक्टली अगर आपको एप्लीकेशन की UI को अगर आपको चेंज करना है या फिर आपको कोई और API यूज करनी है फॉर UI, आप उसको यूज कर सकते हैं API फ्रेमवर्क के अंदर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एंड्रॉइड रन टाइम। और इसको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके बिना आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन रन नहीं हो सकती। आई मीन इट्स अ बेसिक नीड फॉर टू रन एनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन। जैसे कि जावा के अंदर हमने देखा कि JVM होता है, तो JVM का मेन काम होता है कि वो डॉट क्लास फाइल्स को जनरेट करता है, बनाता है। तो सेम वे में एंड्रॉइड के अंदर होता है DVM, इसको हम बोलते हैं डेल्विक वर्चुअल मशीन, और उसका मेन काम होता है वो डॉट डेक्स फाइल बनाते हैं। अभी द रीजन वाई वी आर यूजिंग डॉट डेक्स फाइल रादर देन डॉट क्लास फाइल इज जस्ट दैट कि डॉट क्लास फाइल की जो साइज होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू डॉट डेक्स फाइल, और डॉट डेक्स फाइल जैसे कॉम्पैक्ट होती है तो वो मेमोरी को कम यूज करती है, साथ साथ में बैटरी को भी कम यूज करती है। सो वो एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन है फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस। उसके साथ एंड्रॉइड रन टाइम के अंदर होती है कोर लाइब्रेरीज,
जैसे कि हम बोल सकते हैं जावा की जितनी भी हमने लाइब्रेरीज अभी तक यूज की, कलेक्शन क्लासेस या फिर आईओ की लाइब्रेरीज और बाकी की सारी जावा ऐसी की जो जितनी भी लाइब्रेरीज हमने यूज की वो सारी लाइब्रेरीज इसके अंदर कोर लाइब्रेरीज के अंदर होती है। तो अगर उसका अगर जरूरत पड़ी तो वो इसके साथ साथ वो अपने आप यूज करता है सिस्टम। सो यहाँ तक जो रोल था, सो एआर एंड्रॉइड रन टाइम जो है वो सिस्टम हैंडल करता है, वो उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। एक डायग्राम मैंने दिखाया है यहाँ पर कि जो दर्शाता है कि आपको आपकी जो डॉट डेक्स फाइल है वो कैसे जनरेट होती है। जैसे कि हमने देखा कि जावा का जो सोर्स कोड होता है वो कन्वर्ट होता है डॉट क्लास फाइल के अंदर बाय यूजिंग जेवीएम। ओके, तो जैसे कि डॉट क्लास फाइल के अंदर वो जेवीएम का यूज करके वो डॉट क्लास फाइल को जनरेट करता है। उसके बाद बारी आती है डीवीएम की, जो कि डॉट डेक्स फाइल को फर्दर जनरेट करता है बाय यूजिंग डॉट क्लास फाइल। मतलब वो हम बोल सकते हैं कि उसका एक कॉम्पैक्ट या फिर रिड्यूस वर्जन है डॉट एक्स फाइल, जो कि फर्दर एपीके आपको आपकी जनरेट करता है। डॉट एक्स फाइल से आपकी एपीके जनरेट होती है। तो ऐसे आपकी पूरा प्रोसेस होता है जिससे आपकी एंड्रॉइड की एपीके जनरेट होती है। तो आई होप कि आपको पता चला होगा कि क्या है आर्किटेक्चर और उसके कंपोनेंट्स क्या है। द नेक्स्ट इज एक्टिविटी लाइफ साइकिल। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर उसकी बेसिकली 7 ओवरहेड मेथड्स हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल की, जो हमने यहाँ पर दिखाई है। और ये एक्टिविटी रिप्रेजेंट्स अ सिंगल स्क्रीन विद अ यूजर इंटरफेस जस्ट लाइक विंडो और फ्रेम ऑफ जावा। मैंने जैसे कि दिखाया डेफिनेशन में। उसका मतलब ये होता है कि हम जो भी एप्लीकेशन को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम व्हाट्सएप को यूज करते हो तो जो फर्स्ट स्क्रीन या फिर जो सिंगल पेज जो आप देखते हो उसको हम सिंपल हमें नॉर्मली अगर बोले तो उसको हम एक्टिविटी बोल सकते हैं सिंपली। ठीक है, अभी ये 7 मेथड्स क्या है और इसका यूज क्या है। मेथड्स क्या है ये कि ये जितने भी मेथड्स है वो हम कॉल नहीं करते, वो सिस्टम कॉल करती है। ओके, और ये सातों मेथड ओवरहेड मेथड है। सो वी कैन यूज इट, मतलब जब हमें जरूरत पड़े तब हम इसको यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट 3 मेथड्स आर ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम। तो जैसे ही आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो या फिर आपकी एप्लीकेशन जैसे ही स्टार्ट होती है तो सबसे पहले वो ये 3 मेथड्स बाय डिफॉल्ट कॉल होती है एंड्रॉइड के अंदर। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मतलब आपको कॉल करनी पड़ेगी, आपको कॉल नहीं करनी है। ये सारी मेथड्स वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम कॉल करती है। उसके बाद आपकी एक्टिविटी आती है रनिंग स्टेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक पेज से दूसरे पेज पे अगर आपको जाना है एक्टिविटी के अंदर, मतलब एप्लीकेशन के अंदर आपको अगर एक पेज से दूसरे पेज पे अगर शिफ्ट होना है तो आपकी एप्लीकेशन आपकी एक्टिविटी पॉज में चली जाएगी। ऑन पॉज मेथड जो है 4th मेथड वो कॉल होगी। और अगर आपकी एक्टिविटी बैकग्राउंड में चली जाएगी या अगर आपने होम बटन को प्रेस किया, जैसे कि हम करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप व्हाट्सएप को यूज कर रहे हो और आपको फिर इंस्टाग्राम यूज करना है तो आप क्या करते हो कि होम बटन को क्लिक करते हो, बाहर आते हो, उसके बाद आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, लेकिन व्हाट्सएप एक्चुअली बैकग्राउंड में है। सो उस टाइम पे आपकी जो एक्टिविटी है वो ऑन स्टॉप में चली जाएगी। सो ऑन स्टॉप के बाद जब आप फिर से वो एक्टिविटी को यूज करेंगे तो फिर से वो ऑन रिस्टार्ट और फिर ऑन स्टार्ट, जैसे कि यह डायग्राम में दिखा है वो पूरा फ्लो ऐसे चलता है अपना। ठीक है, और जैसे ही आप एप्लीकेशन को बंद करते हो तो वो ऑन डिस्ट्रॉय में चली जाती है। तो ये सारी मेथड्स है जो कि कैसे कॉल किए उसका एक एग्जांपल मैंने दिखाया है यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ओके, हाँ आप देखो कि यहाँ पर एक कॉल आया तो एप्लीकेशन रनिंग है, जैसे इसने कॉल को आंसर किया तो ऑन पॉज और ऑन स्टॉप बाय डिफॉल्ट कॉल हो गई 2 मेथड्स। और उसके बाद जैसे ही फिर से स्टार्ट किया तो ऑन रिस्टार्ट और ये वाली मेथड्स कॉल हो गई अपनी, ऑन रिस्टार्ट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम। ठीक है, सो इस तरह से ये पूरा फ्लो चलता है। और ये सारी जो ओवरहेड मेथड्स है उसको आप एंड्रॉइड के अंदर यूज कर सकते हो। एक बार फिर से दिखाता हूँ एग्जांपल। यहाँ पर कॉल आया, अपने आंसर किया, ऑन पॉज और ऑन स्टॉप हो गया, और उसके बाद जैसे ही फिर आप वापस से तो ऑन रिस्टार्ट, ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम ये मेथड्स कॉल हो गई। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको करना है कि जैसे कि म्यूजिक प्लेयर की कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हो और आपको चाहिए कि मतलब ये एप्लीकेशन आप जब यूज कर मतलब बैकग्राउंड में ना चले और जब आप यूज करो ये आई एम सॉरी फॉर एग्जांपल समझ लो कि जैसे कि इंस्टाग्राम का एक एग्जांपल देता हूं मैं कि इंस्टाग्राम के अंदर आपने देखा होगा बहुत बार कि आप इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हो, उसके बाद सपोज आपने व्हाट्सएप यूज किया और फिर से आप जब इंस्टाग्राम पे आओगे थोड़े टाइम के बाद यानी 15-20 मिनट के बाद अगर फिर से आप आओगे तो क्या होगा कि पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता होगा। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश जो पेज होता है आपका वो
वो सारे कॉल्स जो होते हैं वो आपकी ऑन रिस्टार्ट जो मेथड्स होती है उसके अंदर भी रखे होते हैं, या फिर ऑन स्टार्ट, ऑन रिस्टार्ट, इन तीनों में से कोई भी मेथड के अंदर वो लोग उसका कॉल बैक रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो सारी चीज वर्क करती है कि मतलब टाइम के अनुसार। ओके, सो नाउ इट इज टाइम फॉर द यूआई। मतलब यूआई क्यों आपके एप्लीकेशन के अंदर जरूरी है, और आप जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आप जो एप्लीकेशन बना रहे हो उसके अंदर यूआई का क्या रोल है, क्यों उसके बगैर आपके एप्लीकेशन का लुक अच्छा नहीं हो सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर मेन 5 पॉइंट्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो यूजर है, तो मोस्ट ऑफ द यूजर जो है हमारे वो नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं, और उनको बैकएंड का कुछ पता नहीं होता है कि मतलब आपने क्या कोड किया है एप्लीकेशन के अंदर, कैसे बनाई है, यूजर को पता नहीं चलता है। ठीक है, सो आपका जो यूआई है वो इंटरेक्टिव होना चाहिए, एंगेजमेंट यूजर का ज्यादा होना चाहिए उसके अंदर, यूजर मैनिपुलेशन एंड कम्युनिकेशन उसके अंदर ज्यादा होना चाहिए। सो दीज आर द पॉइंट्स जो यूआई का इंपॉर्टेंस को बताता है। द वे टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, यूजर विल यूज द ऐप अगेन एंड अगेन। फॉर इंस्टेंस जैसे कि मैंने बताया कि आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, ये तीन जो ऐप है वो आप डेली बेसिस पे यूज करते हो। ठीक है, अगर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होगी जो आपके फोन में है लेकिन आप उसको रेगुलरली यूज नहीं करते हो, तो उसका एक मेन रीजन ये भी हो सकता है कि उसका यूजर यूआई अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यूआई अच्छा होना बहुत जरूरी है कोई भी एप्लीकेशन के अंदर। जैसे जितना बैकएंड जरूरी है उतना ही यूआई भी जरूरी है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि दिखाता है कि बैड यूआई डिजाइन कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर फ्लोरिंग है, तो उसके अंदर जो बटन्स है वो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा उसको डिजाइन कर दिया है इन लोगों ने, ब्लैक और वो शेड दे दिया है, उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल के अंदर भी सेम चीज है कि बैकग्राउंड और उसके जो आइकन्स है उसका जो कलर है वो मतलब वो बहुत कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। और यहाँ पर इस ये सारी यूआईज को हम बोल सकते हैं कि ये सारी बैड यूआईज है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि ये इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आपको रोज यूज करनी है, तो डेफिनेटली आप लोग यूज नहीं करोगे। तो यूआई का अच्छा होना, आई मीन यूआई डिजाइन अच्छी बनाना बहुत जरूरी होता है आपके एप्लीकेशन के अंदर। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि गुड यूआई डिजाइन कैसी होनी चाहिए आपकी। तो आप अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहे हो तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हो। इसके बहुत सारे कैसे यूआई को बनाना है, उसकी गुड यूआई डिजाइन के क्या क्या स्टैंडर्ड्स है, वो सारे आप मटेरियल डिजाइन वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हो, जो कि गूगल ने प्रोवाइड किए वो सारे स्टैंडर्ड्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यूआई डिजाइन कैसे इन लोगों ने डिजाइन किया है। तो बेसिकली आपको ध्यान में दो या तीन चीज रखनी है मेन। एक तो आपके फॉन्ट जो है आप यूज करते हो उसका साइज आपको ध्यान में रखना है, आपका अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए जो भी आप बटन या फिर जो भी आप यूज कर रहे हो आपके यूआई के अंदर। ये सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, सो अब हम लोग शिफ्ट करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। एक बेसिक ऐप बनाएंगे हम जो कि रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यूज होता है। और उसके अंदर बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि एंड्रॉइड स्टूडियो क्या है, लेआउट्स उसका दिखाऊंगा और सारे विजेट्स दिखाऊंगा कि कैसे हम यूज कर सकते हो बेसिकली। तो ये एक यूआई है मैंने डिजाइन किया है अभी, जो कि नंबर जनरेटर के लिए है। तो ये यूआई हम ट्राई करेंगे पहले कि मैं आपको पहले बेसिक यूआई दिखाऊंगा कि नॉर्मल, हाँ जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि बैड यूआई और गुड यूआई का जो डिफरेंस हमने देखा। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल यूआई बना के दिखाऊंगा कि वो कैसे वर्क होता है, और उसके बाद हम लोग ये यूआई बनाने का ट्राई करेंगे। अगर टाइम रहा तो हम लोग ये यूआई डेफिनेटली बना के मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, और मैंने फॉन्ट ये वाले यूज किए और कलर कोड मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो अगर आपको बनाना है तो ये दो चीजें बहुत ध्यान में रखनी जरूरी है, क्योंकि आपको एक तो मैंने आपको बोला था कि फॉन्ट, कि आपके फॉन्ट स्टाइल जो है आपकी वो आपको वाइसली चूज करनी है आपके एप्लीकेशन के अंदर, और क्या है और उसका जो अलाइनमेंट है वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो हम अब एंड्रॉइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे।
तो जैसे ही आप कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड्रॉइड के अंदर, तो ये स्क्रीन आपको दिखाएगी जैसे कि आपका जावा की फाइल यहाँ पर होगी आपकी। ये आपकी एक्सएमएल फाइल है जो कि डिजाइन के लिए हम यूज करते हैं। और यहाँ पर आपकी एक मैनिफेस्ट है। सो बेसिकली मैं पहले स्टार्ट करता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो के इंट्रोडक्शन से, कि मतलब आपको क्या क्या चीजें इसमें ध्यान में रखनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करें तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बेसिक चीजें। जैसे कि सबसे पहली फाइल है हमारे पास मैनिफेस्ट फाइल। तो मैनिफेस्ट फाइल का इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगर इसको डीप में ना जाऊं और एक बेसिक रफ आइडिया दूं आपको, तो रफ आइडिया ये है कि इसके अंदर आप सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन का आइकन चेंज कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम अगर आपको कोई भी देना है तो यहाँ से आप दे सकते हो एप्लीकेशन का नाम। ठीक है, यहाँ पर राउंड आइकन, मतलब जो बहुत फोन्स के अंदर कुछ फोन के अंदर आपने देखा होगा कि स्क्वायर आइकन होता है या फिर राउंड आइकन होता है, तो स्क्वायर आइकन यहाँ पर आप देख सकते हो और राउंड आइकन का जो भी पाथ है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सिंपल। ठीक है, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज आपने बनाई होंगी वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पर लिस्ट डाउन होगी। अभी एक ही एक्टिविटी है हमारे पास, तो उसके लिए यहाँ पर डॉट मेन एक्टिविटी एक ही आ रहा है। यहाँ पर आप कोई भी परमिशन अगर आपको देनी है एप्लीकेशन के अंदर ही, जैसे कि आप यूज करते हो कि कोई भी एप्लीकेशन जैसे कि व्हाट्सएप अगर आप यूज करते हो, तो इनिशियली आपको बहुत सारी परमिशन के लिए पूछता होगा, राइट। तो वो यहाँ पर इनिशियली जैसे कि मुझे इंटरनेट की परमिशन देनी है, वैसे मैं इंटरनेट की परमिशन यहाँ पर दे सकता हूँ कि अगर आपके एप्लीकेशन में इंटरनेट की जरूरत है तो आप यहाँ पर सारी परमिशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते जावा फाइल के ऊपर, जो कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जैसे हमने देखा कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल के अंदर की 7 मेथड्स होती है हमारी, जो ओवरहेड मेथड्स। तो उसमें से एक जो है ऑन क्रिएट, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है और हम मोस्टली हमारा जो कोड है वो सारा इसके अंदर करेंगे। उसका रीजन यही है कि जैसे ही हमारा जो एक्टिविटी लोड होती है तो सबसे पहले ये वाली मेथड कॉल होती है, मैंने जैसे आपको बताया था। तो उसके लिए सारा कोड हम यहाँ पर लिखेंगे। सो यहाँ इसका जैसे ही कॉल होगा सिस्टम के द्वारा, सो बाय डिफॉल्ट वो सारा कोड रन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दूसरी ओवरहेड मेथड्स देखनी है तो यहाँ पर सारी ओवरहेड मेथड्स हैं। आप कंट्रोल ओ क्लिक करके भी आप देख सकते हो, या फिर यहाँ पर जनरेट के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा ओवरहेड मेथड्स को देखने के लिए। तो यहाँ से सारी आप ओवरहेड मेथड्स, जैसे कि हमने अभी देखा कि ऑन स्टार्ट, यहाँ पर ऑन स्टार्ट की मेथड है, जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर ऑन स्टार्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, वैसे आप सारी ओवरहेड मेथड्स को आप देख सकते हो यहाँ पर आते हैं। ये डिजाइन का पोर्शन है। रिसोर्स फाइल के अंदर, लेआउट के अंदर आपको एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन का फाइल मिलेगी। उसके अंदर आप अपनी सारी पूरी यूआई डिजाइन इसके अंदर आप बना सकते हो। अगर आपको कोई इमेज प्लेस करनी है तो यहाँ पर आप इमेज को प्लेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक की है, बटन की इमेज प्लेस की है, तो ये अलग अलग साइज के बटन थे, यहाँ पर मैंने प्लेस किया है। तो ऐसे ही आप कोई भी बटन की इमेज प्लेस यहाँ पर कर सकते हो। मतलब कोई भी इमेज आपको प्लेस करनी है तो कर सकते हो। मैंने कस्टम फॉन्ट्स को यूज किया है, जैसे कि मैंने बोला कि आपको यहाँ एंड्रॉइड के अंदर जो बिल्ट इन फॉन्ट्स है उसका यूज नहीं करना है। आपको अपना इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हो कस्टम फॉन्ट, उसका आपको यूज करना है, जो कि यूआई के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर कुछ वैल्यूज मैंने एंटर की है कलर्स के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कलर कोड मैंने आपको वहां पर दिखाया था, वैसे यहाँ पर मैंने कलर्स की वैल्यूज एंटर की है। अगर आपको खुद से कोई कलर कोड एंटर करना है तो ये XML ही है। यहाँ पर आप कोई भी अपना नाम डाल सकते हो और यहाँ पर आपका उसके कलर कोड की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कलर कोड की अगर वैल्यू आपको नहीं पता चलती है तो उसके बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप ऑनलाइन उसके पैलेट्स मिलते हैं, उसके ऊपर से आप कलर कोड को कॉपी कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास फोटोशॉप या फिर अगर आप XD को यूज करते हो तो उसके अंदर भी आपको इजीली कलर कोड मिल जाएगा। और वैसे भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर सिंपली अगर आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कस्टम मेन्यू मिलेगा, जिसके अंदर आपको कलर आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर उसकी हेक्स वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। तो आपको उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद डिजाइन। सबसे पहले हम लोग डिजाइन बनाएंगे। तो डिजाइन बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम लोग यहाँ पर यूज करने वाला है कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट बेसिकली है क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ले रहा हूँ और मैं आप सबको प्रेफर करूंगा कि आप जितने भी, अगर आप कोई फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर कोई भी
आपको अगर एंड्रॉइड के अंदर प्रोजेक्ट बनाए तो इनिशियली अगर आप कंस्ट्रेंट लेआउट यूज करोगे तो आपके लिए वो इजी रहेगा कंपेयर टू एनी अदर लेआउट। ओके, सो जैसे कि मैंने यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर मैंने सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लिया। यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये जितने भी पैलेट के अंदर जितने भी दिख रहे हैं वो सारे आपके विजेट्स है। जैसे कि टेक्स्ट यहाँ पर होगा, बटन्स होगा, यहाँ पर सारे अलग अलग बटन्स है। ठीक है, यहाँ पर ये सारे विजेट्स आपको मिल जाएंगे जिसको आपको अगर यूज करना है सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आपको ड्रैग करना है स्क्रीन के ऊपर। अगर आप लिनियर लेआउट यूज कर रहे हो तो आप इसको मतलब फ्रीली आप इसको मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही आप उसको ड्रैग करोगे तो आपको चार कंस्ट्रेंट दिखेंगे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के अंदर। ठीक है, तो आप इसको सिंपली ऐसे ड्रैग करके स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी आप फिट कर सकते हो। यहाँ पर उसकी वैल्यू दे सकते हो कि टॉप और लेफ्ट से आपको कितनी वैल्यू रखनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 50 और यहाँ पर 50, तो ये लेफ्ट और राइट टॉप से 50-50 हो गया। ओके, हम डिलीट करते हैं पहले और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंबर जनरेटर। अभी ये एक ही लाइन में आ रहा है, हमें हमने यूआई में जो देखा था वो नेक्स्ट लाइन में था, तो हम यहाँ पर बैक स्लैश एन करता हूँ मैं, तो वो नीचे आ गया। इसकी साइज कर देता हूँ मैं 30 और इसका फॉन्ट फैमिली है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं ये क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट साइज कैसे आया, फॉन्ट फैमिली कैसा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर ये बहुत सिंपल है। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी लिखना है जैसे कि साइज लिखना है तो मैं सिंपल अगर मैं यहाँ पर साइज लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे कि मुझे स्क्रॉल बार की साइज मेंशन करनी या फिर टेक्स्ट की साइज। अगर मैं यहाँ इसको निकालता हूँ सिंपल यहाँ पर साइज लिख रहा हूँ तो मुझे टेक्स्ट टेक्स्ट साइज का बाय डिफॉल्ट मुझे हिंट मिल जा रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करके मैं कोई भी साइज में एलोकेट कर सकता हूँ। ठीक है, डीपी का फुल फॉर्म होता है डेंसिटी पिक्सल, जो कि यूज करते हैं हम मार्जिन को देने के लिए हम यूज करते हैं। और जो एसपी होता है वो बेसिकली हम यूज करते हैं टेक्स्ट साइज को यूज करने के लिए। डीपी एसपी दोनों का काम सेम ही है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं बताता हूँ आपको कि जो हम यहाँ पर मार्जिन दे रहे हैं वो सब हम डीपी में दे रहे हैं, और जो यहाँ पर मैं साइज दूंगा टेक्स्ट की जैसे कि यहाँ पर 30 एसपी दे रहा हूँ, 25 एसपी। ओके, तो ये जो है वो मैंने एसपी में दिया है। इसका रीजन ये है कि एसपी जो है हम यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये सेम एप्लीकेशन अगर आपको एंड्रॉइड टीवी के अंदर यूज करनी है रन करनी है तो क्या होगा कि आपका जो मार्जिन है वो सेम रहेगा, लेकिन जो आपका टेक्स्ट है अगर मैंने यहाँ पर डीपी में दिया होगा, डीपी यानी कि डेंसिटी पिक्सल के अंदर दिया होगा, तो ये जो टेक्स्ट है उसका फॉर्मेशन पिक्सल्स के फॉर्म में होगा। तो जैसे ही आप कोई वाइड स्क्रीन के ऊपर अगर आप इसको यूज करेंगे तो देर आर चांसेस कि मतलब इसकी जो कॉर्नर्स है टेक्स्ट की वो यहाँ पर पिक्सल्स आपको ब्लर दिखना शुरू हो जाएगी, इसका चांसेस है। तो इसके लिए ये लोग सेफर साइड के लिए एचपी को यूज करते हैं, लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है। हर टाइम हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन मतलब जो गूगल ने जो क्या बोलते हैं वो उसके जो स्टैंडर्ड्स है वो ये कहते हैं कि आपको एचपी को यूज करना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट हम यहाँ पर सेंटर के लिए एक नंबर ले लेंगे कि जहाँ पर हम जो नंबर हम रैंडम जनरेट करेंगे उसको दिखाएंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हो। मैं इसको 0 0 दे रहा हूँ ताकि वो सेंटर में आ जाएगा। टॉप राइट लेफ्ट एंड बॉटम से मैं इसको 0 0 मार्जिन दे रहा हूँ। जैसे मैंने वहां पर मार्जिन दिया इसको, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका कोड सेट होगा, मैं मुझे यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और जो मैं कोड और डिजाइन के अंदर स्विच कर रहा हूँ वो यहाँ से कर रहा हूँ मैं, तो आप इजीली यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं साइज दे रहा हूँ टेक्स्ट की,
खान फैमिली में दे रहा हूँ ये वाला, और काइंड ऑफ हम क्रिएट कर रहे हैं अभी। और बेसिकली मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, अब हम बटन क्रिएट करने की यहाँ से मैंने ड्रैग कर रहा हूँ मैं इसको लेफ्ट, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि मतलब आपको ये कंस्ट्रेंट आप ये कहीं पर भी मैच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस टेक्स्ट के नीचे अगर मुझे बटन चाहिए तो मैं यहाँ पर भी कंस्ट्रेंट उसका मैच कर सकता हूँ। यहाँ से मैं एडिट टेक्स्ट ले रहा हूँ। एडिट टेक्स्ट यूज होता है हमारा कि अगर आपको कोई भी नंबर या फिर अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग अगर यूजर से इनपुट करवानी है तो आप एडिट टेक्स्ट को यूज कर सकें। इसके इतने सारे वेरिएशंस है। पासवर्ड के लिए अलग है, ईमेल के लिए अलग है, फोन के लिए अलग है। जैसे कि इसका मतलब डिफरेंस यही है इसके इन सब के अंदर कि जो आपने आई मीन देखा होगा कि जब आप कोई भी नंबर को कोई भी फॉर एग्जांपल अगर आपको व्हाट्सएप को यूज कर रहे हो और उसके अंदर जैसे ही आप अपना नंबर डालते हो, फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्टर किया होगा व्हाट्सएप के अंदर, तो फर्स्ट टाइम जब आपने नंबर डाला था अपना, तो उस टाइम पे जैसे नंबर के जो भी टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके ऊपर आपने जैसे ही क्लिक किया होगा तो वो पूरा का पूरा जो आपका टेक्स्ट पैड है जो जो कि आई मीन अल्फाबेटिकल जो टेक्स्ट पैड आता था एबीसीडी वाला, उसके जगह पर वो न्यूमेरिकल हो जाता था 0 1 2 3 वाला। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इन सब के अंदर। इसको हम मैन्युअली भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि यहाँ पर लिखा है इनपुट टाइप टेक्स्ट पर्सन नेम, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंबर, तो वो चेंज होगा। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा, जब हम रन करेंगे एप्लीकेशन को तब पता चलेगा डिफरेंस। ओके, सो बेसिक हमारा जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि टेक्स्ट जो है टेक्स्ट व्यू, इसको मैंने लेफ्ट और टॉप से मैंने किया है, मार्जिन दिया है यहाँ पर। इसको मैंने इसके चारों कंस्ट्रेंट को मैंने कनेक्ट किया है, एडिट टेक्स्ट और बटन इन सबको मैंने कनेक्ट कर दिया है अलग अलग कंस्ट्रेंट के यूज करके। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग। सबसे पहले अभी तक हमने जो भी कोड किया है उसके अंदर हमने क्या किया है कि हमने सिर्फ एक्सएमएल का जो डिजाइन है वो हमने क्रिएट किया है, लेकिन अभी तक एक्सएमएल और जो हमारा जावा की जो फाइल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। अगर मैं इसको निकाल दूं, यहाँ पर इससे निकाल दूं, तो ये सेपरेट जावा की अलग फाइल हो गई और ये एक्सएमएल की डिजाइन की पूरी अलग फाइल होगी। अब हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि इसको ब्रिज बनाना है इन दोनों के बीच में। तो हम मैं कर रहा हूँ, और ये लाइन ऑफ कोड जो है वो बाय डिफॉल्ट आता है हमारा सेट कंटेक्स्ट व्यू। यहाँ पर लिखा होता है कि आपकी जो डिजाइन की फाइल है वो कौन से लोकेशन पर है। तो यहाँ पर लिखा है कि r.layout.activity मीन, यानी कि r मीन्स यहाँ पर रिसोर्स वाला फोल्डर, उसके अंदर लेआउट का फोल्डर, और उसके अंदर आपका ये वाली जो फाइल है वो यहाँ पर सेट की हुई है। सबसे पहले इसको आईडीज देना बहुत जरूरी होता है, तो मैं इसको आईडी दे रहा हूं नंबर, बटन एंड ओके। सो मैंने ये तीनों आईडीज दे दी है। अगर मुझे बटन के क्लिक पे कोई भी इवेंट अगर मुझे परफॉर्म करवानी है तो इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट है जिसको हम बोलते हैं ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक का यूज करके मैं जावा की कोई भी फंक्शन को मैं कॉल करवा सकता हूँ। अगर हमने यहाँ पर कोई कस्टम मैंने कोई फंक्शन बनाया है तो उसको अगर मुझे कॉल करवाना है तो ऑन क्लिक से मैं कॉल करवा सकता हूँ। तो हम ऐसा बनाएंगे कि जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूंगा कोई भी एक फंक्शन जावा के अंदर जो हम यहाँ पर बनाएंगे वो कॉल होगा। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ बटन, ठीक है। अभी हमने ये फंक्शन बनाया नहीं है, इसके लिए यहाँ पर एरर दिखा रहा है। अब हम यहाँ पर वो फंक्शन बनाएंगे
पब्लिक वॉइड बटन क्लिक। ये ध्यान रखें कि आपने जो भी नाम दिया है यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल, आई मीन जो आप नेमिंग कन्वेंशन है उसका ध्यान रखें। जो वहां पर नाम दिया है वही सेम नेम यहाँ पर होना चाहिए फंक्शन का। तो ऐसे हम एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया है यहाँ पर, और यहाँ से एरर चली गई होगी। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो यहाँ डायरेक्टली मुझे यहाँ पर रीडायरेक्ट करेगा। ओके, सो अभी हमने जितने भी विजेट्स यहाँ पर यूज किए हैं, जैसे कि ये वाला टेक्स्ट नंबर के लिए हमने ये वाला यूज किया है, ये एडिट टेक्स्ट यूज किया है, इन दोनों को हमें जावा के अंदर पहले तो डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेक्स्ट व्यू, नंबर नाम दिया है, और एडिट टेक्स्ट। जितने भी एंड्रॉइड के अंदर विजेट्स है, जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट व्यू बटन है, वो सारे के उन सारे के रेपर क्लास यहाँ पर बने हुए हैं बाय डिफॉल्ट, जैसे कि टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट है, और बहुत सारे हैं जैसे कि स्पिनर है, बहुत सारे जितने भी आप यहाँ पर ये डिजाइन के अंदर ये जितने भी विजेट्स आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सारे के इन सारे के रेपर क्लास यहाँ पर बने हुए हैं एंड्रॉइड के अंदर। तो आपको सिर्फ उसको कॉल करना है और दोनों को कनेक्ट करना है। सबसे पहला और बेसिक स्टेप यही है कि नंबर id r.id डॉट नंबर, ठीक है। तो फाइंड बाय आईडी का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल XML के अंदर से कोई भी विजेट को फाइंड करना है तो वो सेम आईडी का यूज करके मैं उसको फाइंड कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने नंबर या आईडी दिया था, ये वाला नंबर उसके साथ कनेक्ट हुआ यहाँ से, ठीक है। आईडी टेक्स्ट फाइंड बाय आईडी r.id डॉट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट भी कनेक्ट होगा और टेक्स्ट भी होगा। अब हमें क्या करना है कि मैं जो भी वैल्यू यहाँ पर नंबर जो भी डालूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 डाल रहा हूँ तो 0 to 6 के बीच में जितने भी नंबर है उसमें से कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होकर मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए जावा का बिल्ट इन फंक्शन है, उसका हम यूज करेंगे। सबसे पहले रैंडम जो भी हम नंबर ले रहे हैं वो यहाँ से लेंगे एडिट टेक्स्ट से। सो यहाँ पर मैं सिंपल इंटीजर एक बना रहा हूँ वेरिएबल, यहाँ पर एरर दिखा रहा है। उसका रीजन ये है कि जैसे हम एडिट टेक्स्ट के अंदर से कोई भी चीज को लेते हैं एज इनपुट, तो वो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा। यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रिंग लिखा है इसके लिए, तो उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पर इंटीजर ले रहे हैं नंबर। सबसे पहले मैं इसको पार्स करूंगा, अल्टर एंटर करके आप यहाँ से डायरेक्टली पार्स कर सकते हो। तो अब ये इंटीजर के अंदर पार्स हो चुका है, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो मुझे प्रिंट करवानी है हमारे टेक्स्ट व्यू के अंदर, यानी कि इस नंबर वाले टेक्स्ट व्यू के अंदर। मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर से एक बार बता रहा हूँ फ्लो कि ये वाला जो एडिट टेक्स्ट है, यहाँ से हमने वैल्यू को एज ए इनपुट लिया यूजर के पास से, और जो भी वैल्यू आएगी बटन के क्लिक पे हम उस पे मतलब रैंडम नंबर जनरेट करवा के उसको यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा r डॉट नेक्स्ट एंड, और यहाँ पर हमें नंबर पास करना पड़ेगा, ओके। तो ये बेसिक कोड है हमारा नंबर को जनरेट करवाने के लिए। इसको पहले एक बार रन करके लिख लेता हूँ। तो जब तक ये रन हो रहा है तब तक मैं आपको
दूसरे एंड्रॉइड स्टूडियो के कुछ कुछ कंपोनेंट्स को दिखा देता हूँ, जैसे कि ड्रॉवेबल के अंदर मैंने आपको बोला कि आपको अगर फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज को अगर आपको रखना है, अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर आपको कोई इमेज यूज करनी है, या फिर कोई ड्रॉवेबल की, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक दिखा रहा हूँ आपको। हमने जैसे देखा था कि बटन जो था उसके बैकग्राउंड के अंदर एक रेडियस कॉर्नर आया था। मैंने जैसे आपको दिखाया था यूआई के अंदर अभी। तो बटन का जो बैकग्राउंड था वो उसकी जो रेडियस थी वो कॉर्नर ऐसे था। तो वो कैसे हम इसके अंदर डिजाइन कर सकते हैं वो दिखाता हूँ। ड्रॉवेबल के अंदर राइट क्लिक करके न्यू में जाके न्यू ड्रॉवेबल रिसोर्स फाइल हम क्रिएट करते हैं, जो कि बेसिकली अगर मुझे इस बटन को कोई कस्टम बैकग्राउंड देना है या फिर इस एडिट टेक्स्ट को कोई कस्टम बैकग्राउंड देना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो बैकग्राउंड करके मैंने एक फाइल यहाँ पर मैंने क्रिएट की है। जस्ट 1 मिनट, एप्लीकेशन रन होगी, ये देख लेते हैं एक बार। मैं एप्लीकेशन की स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। ओके, तो अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि जैसे मैंने यहाँ पर 6 इनपुट किया है और मैं बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये रैंडमली नंबर्स जनरेट करेगा कोई भी 0 to 6 के बीच में। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये वाला ओपन हो गया। यहाँ पर आपको टेक्स्ट इनपुट करने के लिए नहीं पूछेगा, वो नंबर इनपुट करने के। तो ये डिफरेंस है कि हम जब वहां पर इनपुट टाइप के अंदर हमने नंबर डाला था तो उसकी वजह से यहाँ पर ये पैनल ऐसे खुल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर 3 डाला, 1 2 3 के बीच में आप कोई भी नंबर को जनरेट कर सकते हो रैंडमली। तो ये चीज आपको मतलब अगर आपको कोई डाइस वाली एप्लीकेशन बनानी है कि जिसके अंदर आपको रैंडमली जनरेट करवाना है कोई भी नंबर 0 to 6 के बीच में, 1 to 6 के बीच में, तो आप वो एप्लीकेशन ऐसे सिंपल कोड से आप बना सकते हो। ओके, तो अब एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आ जाते हैं। तो बेसिकली मैं आपको दिखा रहा था कि बैकग्राउंड कैसे आपको क्रिएट करना है। तो बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक नया ड्रॉवेबल फाइल क्रिएट किया है जिसका नाम दिया है मैंने बैकग्राउंड, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ शेप। ये सारे जितने भी मैं टैग्स लिख रहा हूँ वो सारे एक्सएमएल के अंदर प्री फॉर्मेटेड, मतलब ये इन लोगों ने प्री बिल्ट है, इन लोगों ने बनाए हैं, हमें सिर्फ इसको यूज करना है। तो यहाँ पर मैं इसका एट्रीब्यूट शेप रेक्टेंगल इसको कलर दे देते हैं। अगर आपको नहीं याद आ रहा है कि मतलब कैसे करना है तो आप सिंपली जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके सामने वो पूरा हिंट दिखाएगा आपको कि क्या क्या आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। मैं यहाँ पर इसको कलर दे रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर स्पेस दे रहा हूँ और ये पूरा मुझे लिस्ट दिखा रहा है। बैकग्राउंड, तो यहाँ पर ये कलर आ गया। अभी इसको मुझे रेडियस देनी है, यहाँ पर कॉर्नर को मुझे सम सॉर्ट ऑफ रेडियस देनी है। तो यहाँ पर मैं कॉर्नर्स, और यहाँ पर मुझे दिखाएगा कि रेडियस ऑप्शन है 30 80। तो ये इसकी जो कॉर्नर्स है वो इसके ऊपर रेडियस आ गई है। सेम यहाँ पर अगर आप लाइट बैकग्राउंड दिया तो मैंने ये थोड़ा लाइट कलर हो गया है। इसको अप्लाई करके भी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये एडिट टेक्स्ट है हमारा, तो इसके बैकग्राउंड में अगर मुझे ऐड करना है, इसका बैकग्राउंड मैंने दिया और सिंपल यहाँ पर बैकग्राउंड लिख रहा हूँ मैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर इसका बैकग्राउंड अप्लाई हो चुका है, लेकिन वो सेम वे में नहीं आ रहा है जैसे हमने वो वहां पर दिखा था। तो उसके लिए हमें पैडिंग देना पड़ेगा। तो उस पैडिंग और मार्जिन का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि पैडिंग क्या है और मार्जिन क्या है। तो यहाँ पर ये बाहर का जो डायमेंशन दिख रहा है वो आपको ये वाला जो है ये मार्जिन है, और अगर मुझे नेम और ये बैकग्राउंड इन दोनों के बीच में अगर स्पेस क्रिएट करनी है तो मुझे पैडिंग देना पड़ेगा। तो पैडिंग मैं हॉरिजॉन्टल दे रहा हूँ। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि इसका जो शेप है वो बिल्ड हो चुका है।
इसकी जो कॉर्नर्स है वो राउंडेड है और जैसे हमने यूआई में देखा था वैसे ही सेम शेप इसका आ गया है। स्टिल अगर आपको इसको ज़्यादा विड्थ इसकी देनी है तो आपको ये वाली चीज़ समझनी पड़ेगी, रैप कंटेंट वाली। इसकी विड्थ मैं 0 dp करता हूँ और आपको कुछ शेप मिल गया होगा जैसे हमने देखा था डिज़ाइन के अंदर। तो ये चीज़ है बेसिकली, आपको डिज़ाइन के अंदर ये सारे प्रिंसिपल्स है जो ध्यान में रखने हैं। आप गाइडलाइंस का यूज़ कर सकते हो एंड्रॉइड के अंदर, जो कि आपको हेल्प करेगी कैसे आपको डिज़ाइन को स्ट्रक्चर करना है। आपको गाइडलाइंस यहाँ से मिल जाएगी, ये रही गाइडलाइंस। अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल गाइडलाइंस को यूज़ कर रहा हूँ तो ये गाइडलाइन यहाँ से आप इसका रेफरेंस लेके आप अपने पूरी एप्लीकेशन के अंदर डिज़ाइन बना सकते हो कि कैसे आपको जितने भी एलिमेंट्स है उसको स्ट्रक्चर करना है। अगर मुझे इसका रेफरेंस लेके यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर ऐसे में ड्रैग करके पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने यहाँ इसका जैसे बैकग्राउंड दिया, सेम आप बटन का भी बैकग्राउंड दे सकते हो। सेम इसका कलर देख सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ इसका कलर था ब्लू, तो मुझे टेक्स्ट कलर देना है तो टेक्स्ट कलर, और यहाँ पर लिखूंगा मैं ब्लू, तो ये ब्लू कलर हो गया मेरा। इसका भी टेक्स्ट कलर था, डार्क वाला था तो ये डार्क हो गया। तो ऐसे आप डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो और ये सारी जो प्रिंसिपल्स है वो आपको ध्यान में रखना है कि गाइडलाइंस कैसे आपको यूज़ करना है और ये बेसिक डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स। जावा के कोड के अंदर इतना ही था कि मतलब आपको ज़्यादा कुछ इसके अंदर करना दिक्कत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये इतना टफ नहीं है, इजी है, आप कर सकते हो। ओके सो ओके, तो हमने ये डिज़ाइन देखी कि कैसे बनाना है, कि नंबर जनरेटर ऐप कैसे हम बना सकते हैं सिंपली जावा के अंदर। ऐसे ही आप कैलकुलेटर, अगर आपको मतलब बिगिनिंग अगर आप कर रहे हो एंड्रॉइड के अंदर तो कैलकुलेटर की ऐप बना सकते हो। और बाकी जितने भी एडवांस एप्लीकेशंस है अगर वो आपको बनाना है आपके प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई जैसे आप कॉलेज के फाइनल ईयर के लिए अगर आप कोई प्रोजेक्ट को सोच रहे हो बनाने के लिए, तो आई रिकमेंड यू कि एंड्रॉइड के लिए बेस्ट है आप फायरबेस को यूज करें। फायरबेस के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएगी, जैसे कि एमएल किट है, उसका यूज करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी बनेगी और बहुत सारे फीचर्स फंक्शनलिटी उसके अंदर आप ऐड कर सकेंगे मशीन लर्निंग की। जैसे कि मैंने ओसीआर को यूज किया था, वैसे आप उसके अंदर बहुत सारी चीजें गूगल कोड लैब का यूज कर सकते हो आप लोग। और गिटअप की जो स्टूडेंट पैक है उसके अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाएंगे जिसका यूज करके आप बहुत अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हो। लेकिन मैं इनिशियली अगर आप प्रोजेक्ट के लिए अगर आप बना रहे हो तो फायरबेस आप यूज करें एज ए डेटाबेस, जो आपको अच्छा रहेगा। ये मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई अगर आप सीख रहे हो एंड्रॉइड और आपको कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस है, अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो। एंड दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Thank you so much, Pithadia sir, for giving your valuable time and for sharing your knowledge. Hello. Yes, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Okay, sir. Thank you so much for sharing your knowledge and for giving your valuable time. Okay, I am asking in audience any question to anyone? Yeah, sir, one question is there from our students.
if they want to get expertise in Android, okay, so is there any course available that you can suggest to them? अगर आपको एंड्रॉयड के अंदर जाना है तो सबसे पहले मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा आपको। अभी जैसे कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट या सेकंड ईयर के अंदर हो तो आप जावा आपको बेसिक आ रहा होगा, मतलब आपको कोर्स के अंदर है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कॉटलिन से स्टार्ट करें। कॉटलिन अच्छा रहेगा और उसके लिए आपको आपके पास एक कोर्स है, अगर मैं हो सकता है तो मैं चैट बॉक्स के अंदर या फिर मैं मैम को उसके लिंक शेयर कर दूंगा वो कोर्स की। यूडासिटी पे एक कोर्स अवेलेबल है जो कि आपको बेसिक कॉटलिन का पूरा नॉलेज दे देगा, प्लस गूगल के बहुत सारे रिसोर्सेज भी है जो मेरे पास है। अगर मैं मैम को व्हाट्सअप कर दूंगा वो सारे रिसोर्सेज जो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो उससे आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हो और उसके अंदर वो पूरा मतलब बेसिक बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल का वो पूरा कोर्स है जिससे कि आप इजीली एंड्रॉइड को कवर कर सकते हो। Okay, sir. Okay. Thank you so much, sir. थैंक यू मैम। Okay, thank you so much, Pithadia sir. On behalf of Parul University, we will provide you certificate for this wonderful session taken by you. Thank you so much, sir. ओके, थैंक यू मैम।